کہ جب تم اونٹ سے سفر ہو کر اونٹ پر سفر کر رہے ہو اور کہیں کھڑے ہو کر تمہیں باتیں کرنی ہو تو اونٹ سے اتر جاؤ تاکہ اونٹ آرام کرے. اسی طریقے سے اسلام کا حکم ہے کہ اگر تم کسی جانور کو ذبح کرو تو تمہاری جو چھری ہونی چاہیے وہ تیز ہو تاکہ اس میں تکلیف نہ ہو. بالکل. اور اسی کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فقہ حنفی کا یہاں تک نظریہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بلی داخل ہو جائے جو اندھی ہو، وہ ادھر ادھر جا کر اپنا رزق تلاش نہیں کر سکتی، تو آپ کا یہ فرض ہے اس کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا. آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بہت اچھی مثال پیش کی ہے کہ اگر بلی اپنا رزق نہیں تلاش کر سکتی تو ہمارا پھر فرض ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جیسے کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، مسئلہ آتا ہے گوشت خوری کا، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام جانوروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا دعویٰ کرتا ہے یا حکم دیتا ہے تو پھر یہ مسئلہ جو آتا ہے، حالانکہ یہ موضوع سے ہٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ موضوع سے نہیں ہٹے گا. یہ تو ظاہر ہے کہ وہ جانور جو کہنا چاہیے بیکار ہو گئے ہوں، یا وہ مادائیں جو کہنا چاہیے دودھ نہیں دیتی ہیں، بچے نہیں دیتے ہیں، انہیں کہنا چاہیے ہم ذبح کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول کا کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے آئے کہ جس سے اور واضح ہو جائے کہ آپ کا جو عمل ہے جانوروں کے ساتھ وہ بھی ایک کہنا چاہیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. دیکھیے، ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کچھ لوگ جانوروں سے کھیل رہے تھے تو آپ نے ان کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، ہر ذی روح کے کلیجے میں جان ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں کو کہ جو دودھ دیتے تھے، جس طرح وہ ان درختوں کو جو بارآور پھلدار ہوتے تھے ان کو کاٹنے سے منع کرتے تھے. لیکن چونکہ جانور انسان کی غذا بھی ہے، اور وہ جانور جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی کہ جو بیکار ہو جاتے ہیں، عام کھیتی باڑی یا دودھ کے لائق یا بار برداری کے لائق نہیں ہوتے ہیں، تو اگر وہ ایسی چھوڑ دیے جائیں تو وہ انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں گے، اور اس کی اخراجات برداشت کرنے کے لیے اس کو دشواری بھی پیش آئے گی. اسی سلسلے میں کانفرنس ہوئی تھی، اسی بات میں اضافہ کر رہا ہوں. اس موضوع پہ گفتگو کی گئی، اس میں ہمارے وہ لوگ بھی تھے جو بہت چیمپئن ہوتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی انسانوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو اس میں بہت سارے سائنٹسٹ تھے. یہ کانفرنس دہلی میں ہوئی تھی، تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ وہ جانور، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، وہ جانور جس نے دودھ دینا بند کر دیا، اب اس سے اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے، اب اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس کے اوپر اس کو زندہ رکھنے کے لیے بہت سارے اخراجات ہیں، وہ بہت سارے چارے وہ خود جو وہ جانور کھائے گا. تو اب اگر کوئی شخص اس کو کھا لے رہا ہے تو ایک تو ان ساری چیزوں سے اس کو روک رہا ہے، مزید یہ ہے کہ کچھ لوگ اس وقت کھا کر اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. نہیں، وہ تو ضروری ہے، بالکل صحیح آپ نے فرمایا. لیکن یہاں یہ چیز ہے کہ جیسا کہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے، لیکن حضور کی جو شخصیت ہے وہ تو بالکل اس سلسلے میں نمایاں ہے، اور کہنا چاہیے ایک خود اپنی جگہ پر ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے لیے جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن خود ان کا کردار جو رہا ہے انسانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ، بعثت نبوی سے پیشتر جو ان کی 40 سالہ زندگی ہے، اس میں بھی ان کا جو کہنا چاہیے عمل و کردار ہے وہ بالکل مثبت ہے. یعنی جانوروں کے ساتھ بھی ان کا عمل جو ہے وہی ہے کہ اس کی بھی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا ہے. یہاں تک وہ حضرات جو کہنا چاہیے
जानवरों को आज के पीरियड में जानवरों को बहुत ज्यादा अहमियत देने की कोशिश करते हैं, उसमें भी कहना चाहिए कि बल्कि उनका जो है, इंसानों से ज्यादा उसको अहमियत देने लगे हैं प्रोपेगेंडे के तौर पर कि वो मैं आपसे चाहता हूं कि आप ये जरा बताइए कि उनको जानवरों को इंसानों से ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहिए, इस सिलसिले में आप जरा। एक बहुत दिलचस्प वाकया है। एक महफिल में मैं शरीक था, उसमें एक साहब ने आकर कहा कि मुझे कोई ये बता दे, मुझे समझ में नहीं आता कि हु इज बैकवर्ड। एक गांव का आदमी बैकवर्ड है या एक शहर का आदमी बैकवर्ड है? गांव का आदमी 4 बच्चे पालता है और शहर का आदमी 4 कुत्ते पालता है। मैं समझता हूँ मेरा यही जवाब काफी है इसके। ये बहुत अच्छी बात कही आपने इस सिलसिले में। ये बहुत अच्छी मिसाल दी आपने कि एक शख्स जो है वो बच्चे पाल रहा है और एक शख्स जो है वो जानवर पाल रहा है। बहुत सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुनासिब जवाब और दिया भी है। कई मिसालें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं जी हाँ। उसके लिए कि आखिरत में उसको क्या फायदा पहुंचेगा। आखिरत में क्या फायदा? मसलन मिसाल के तौर पर पेश किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक बुढ़िया थी, उसने एक कुत्ता पाल रखा था और उसको खाना पीना नहीं देती थी, यहाँ तक कि वो मर गया, उसको अजाब हुआ। और एक बुढ़िया कुएं के जगत पर आकर खड़ी थी और पानी निकालकर पीने जा रही थी कि इतने में उसने देखा कि एक कुत्ता आ रहा है और जबान निकाले हुए और इंतहाई प्यास से परेशान, तो उसने जल्दी से पानी लिया और लेकर कुत्ते को पिला दिया। कुत्ते ने उसकी तरफ बड़े शुक्र की निगाह से देखा, फिर उसकी मगफिरत हो गई और उसके सारे गुनाह माफ हो गए। ये ऐसी चीज है कि जो इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा पुरखुशी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाकर ये फरमाया कि उसमें भी अज्र व सवाब है। ये चीज साबित भी करती है। ये चीज जो है ये यानी हुजूर ने अपनी जबान मुबारक से जब ये चीज पेश की तो इसके मतलब ये है कि वो ऐसा ही अमल चाहते हैं इंसान का। इस सिलसिले में कहना चाहिए कि हुजूर का जो जानवरों के साथ अखलाक रहा है वो आपने बहुत अच्छे अंदाज में उसको वाज़ेह किया। और आपने जो एक वो पैगंबर अखलाक की हैसियत में जो सवाल उठता है उसकी बहुत अच्छी तस्वीर कशी की है। नाज़रीन मोहतरम, देखिए अल्लाह ताला ने जो भी नबी भेजे हैं वो मुजस्सम अखलाक होते हैं। यहाँ एक चीज यह आती है कि जो हुजूर से पहले जो नबी अल्लाह ताला ने भेजे उनके ऊपर जो मजहब हैं या जो अहकामात हैं वो मुख्तसर हैं, लेकिन अल्लाह के जो आखिरी नबी हैं इन पर जो अहकामात नाजिल हुए हैं उसमें पुराने नबियों के वाक़यात भी हैं और नज़ीरे भी हैं। उसको मद्देनजर रखें तो ये सामने चीज आ जाती है कि हुजूर जो हैं मुजस्सम तरीन अखलाक हैं। ये चीज सामने आ जाती है कि मुजस्सम तरीन अखलाक हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ ये प्रोग्राम जो है मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हमारी मुलाकात होगी। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गलियों में अब तलक तो मज़कूर है हमारा, गलियों में अब तलक तो मज़कूर है हमारा।
ETV اردو پر اگلا پروگرام آداب، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی انڈیا۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ دہلی میں آپ اور بی جے پی کا حکومت سازی کا دعوی کرنے سے انکار، لیفٹیننٹ گورنر کے رول پر سب کی نگاہیں۔ راجستھان، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں بی جے پی کی حکومت سازی کی تیاری، وسندھرا، شیوراج اور رمن کا وزیر اعلی بننا طے۔ سونیا گاندھی نے چناؤ نتائج پر کیا مایوسی کا اظہار، شکست تسلیم کرتے ہوئے کی خود احتسابی کی بات۔ نوٹا کے بٹن نے بھی دکھایا کمال، راجستھان میں قبائلی حلقوں میں نوٹا کا سب سے زیادہ ہوا استعمال۔ ایران اور مغربی ممالک کے بیچ معاہدے کے خاکے پر عمل درآمد شروع، IAEA معائنہ کاروں نے عراق نیوکلیر پلانٹ کا کیا دورہ۔ اور جنوبی افریقہ نے ٹیم انڈیا سے ون ڈے سیریز جیتی، ہاشم آملہ بنے ون ڈے میں تیزی سے 4000 رن مکمل کرنے والے کھلاڑی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کریں گے 4 ریاستوں کے انتخابی نتائج کی۔ دہلی اسمبلی کے چناؤ نتائج نے نئی حکومت کے قیام کو مشکل کر دیا ہے۔ بی جے پی 31 سیٹیں لے کر بڑی پارٹی تو بن کر ابھری ہے، لیکن حکومت سازی کے لائق سیٹیں اس کے پاس نہیں ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے 28 سیٹیں جیتی ہیں۔ آپ نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ حکومت سازی کے لیے نہ کسی کی حمایت لے گی اور نہ ہی کسی کو حمایت دے گی۔ اس طرح دہلی میں حکومت سازی ٹیڑھی کھیر ثابت ہو رہی ہے۔ دہلی میں اسمبلی چناؤ نتائج چونکانے والے رہے ہیں۔ ان نتائج نے حکومت سازی کا کام مشکل کر دیا ہے۔ بی جے پی اور اس کے اتحادی مل کر 32 سیٹیں حاصل کر سکے، لیکن حکومت سازی کے لائق 36 سیٹوں کے جادوئی اعداد حاصل کرنے میں نریندر مودی کا کرشمہ بھی کام نہیں آ سکا۔ اروند کیجریوال کی آپ نے 28 سیٹیں جیت کر کانگریس اور بی جے پی دونوں کو جھٹکا دیا ہے۔ 15 برس تک اقتدار میں رہنے والی کانگریس محض 8 سیٹوں پر سمٹ کر رہ گئی۔ بی جے پی اور کیجریوال دونوں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ حکومت سازی کا دعویٰ پیش کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ کیجریوال نے کہا ہے کہ وہ نہ کسی کی حکومت بنانے میں مدد کریں گے اور نہ حکومت بنانے میں کسی کی مدد لینے والے ہیں۔ بالکل ایک کنسٹرکٹیو وپکش کی بھومکا نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کانگریس بنا شرط سمرتھن دیتی ہے تو کیا آپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم کسی سے سمرتھن نہ لیں گے۔ بی جے پی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار ہرش وردھن بھی صاف کہہ چکے ہیں کہ وہ حکومت سازی کا دعویٰ پیش کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ کے رول پر سب کی نگاہیں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے وہ بی جے پی کو حکومت سازی کے لیے مدعو کر کے اکثریت ثابت کرنے کی مہلت دیتے ہیں یا نہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ بی جے پی اندر خانہ کانگریس کے ارکان کے رابطے میں ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ کانگریس کے کم از کم 3 ارکان توڑ لیے جائیں تاکہ دل بدل مخالف قانون کی زد سے وہ ارکان بچ جائیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت سازی کے عمل سے دور رہنے کی بات کہہ کر بی جے پی دہلی عوام کو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ انہوں نے آپ کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ بیکار کیا، تاکہ اگر دہلی میں دوبارہ چناؤ کی نوبت آئے تو اسے عوام کی بھرپور حمایت مل جائے۔ ای ٹی وی نیوز دہلی۔ 4 ریاستوں دہلی، راجستھان، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کا صفایا ہو گیا ہے۔ بی جے پی نے 4 ریاستوں میں شاندار مظاہرہ کیا۔ دارالحکومت دہلی میں سب سے زیادہ چونکا دینے والا مظاہرہ عام آدمی پارٹی نے کیا۔ راجستھان اور دہلی میں کانگریس برسر اقتدار تھی، جبکہ چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں بی جے پی کا قبضہ تھا۔ بی جے پی اپنی دونوں ریاستوں میں اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے
मजीद ये कि बीजेपी ने कांग्रेस से राजस्थान का किला भी छीन लिया है। इसके अलावा दिल्ली में भी बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त पाश दी है। दिल्ली के नतायज सबके लिए चौंकाने वाले रहे। अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली आम आदमी पार्टी ने तवक्कुआत से बेहतर मुजाहरा किया। आम आदमी पार्टी ने गैर मुतवक्का तौर पर 28 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी का चेहरा तस्लीम किए जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपनी हरीफ शीला दीक्षित को हैरत अंगेज तौर पर 22,000 वोटों से शिकस्त दी। मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली में बीजेपी को 32 सीटें, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 और दीगर को 2 सीटें मिली। जीत गया भाई, जीत गया, आम आदमी जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। राजस्थान में भी कांग्रेस का सफाया हो गया है। राजस्थान असेंबली की 199 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटों पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि बीजेपी ने 162 सीटों पर जीत दर्ज की। आरजेपी ने 4 और बीएसपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। 9 सीटों पर आजाद और दीगर जमातों के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। ऐतिहासिक जीत कोई एक व्यक्ति या कोई एक आदमी नहीं कर सकता। मैम एक बात बताइए, सफलता एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इतनी सफलता मिलेगी कि आपने सोचा था? हमने सोचा था कि ये 120, 125 तक जाएगा, परंतु ये अपने आप में ऐतिहासिक था। हमने ये देखा था स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर जनता के मन में टीस थी, एक नाराजगी थी और एक कुराज और कुशासन से बिल्कुल तंग आ गए। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने कामयाबी का सिलसिला बरकरार रखा। छत्तीसगढ़ की 90 रुकनी असेंबली में बीजेपी ने 49, कांग्रेस ने 39 और बीएसपी ने 1 और दीगर ने 1 सीट पर कामयाबी हासिल की। राजनीति की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 10 वर्ष पूरे होने के बाद तीसरे बार इस होने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक पूरा किया है। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को मैं यह जीत समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। मध्य प्रदेश के इंतखाबी नतायज भी कांग्रेस के लिए गम और बीजेपी के लिए खुशी का पैगाम लेकर आए। मध्य प्रदेश की 230 रुकनी असेंबली में बीजेपी ने 165 सीटों पर, कांग्रेस ने 58 पर, बीएसपी ने 4 पर और दीगर ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की। मेरी बहनें, माताएं, मैं उनका सचमुच में माताओं बहनों को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जैसा स्नेह प्यार भाई को दिया है, दुर्लभ होता है वो, सचमुच में वो दुर्लभ होता है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे मजदूर, मैं किस किस की बात करूं। भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य है कि सबका स्नेह और प्यार हमने हासिल किया है और इसलिए प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता को मैं प्रणाम करता हूं। सचमुच में जो जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, हम सब अभिभूत हैं, हम सब अभिभूत हैं। चारों रियासतों के नतायज के मंजर आम पर आने के बाद मुल्क भर में बीजेपी के दफातर में खुशी का माहौल देखा गया, जबकि कांग्रेस के दफातर सुनसान नजर आए। बीजेपी कारकुनों ने मुल्क के कई मकामात पर आतिशबाजी की और मिठाइयां तकसीम करके अपनी पार्टी की जीत का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। 4 रियासतों में शानदार कारकर्दगी की खुशी से सरशार बीजेपी ने अब इन रियासतों में हुकूमत साजी की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने चारों रियासतों के लिए ऑब्जर्वर मुकर्रर किए हैं। ये ऑब्जर्वर वहां हुकूमत साजी के अमल की निगरानी करेंगे। राजस्थान में वसुंधरा, मध्य प्रदेश में शिवराज और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का वजीर आला बनना तय माना जा रहा है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शानदार कामयाबी और दिल्ली में अच्छी कारकर्दगी के बाद बीजेपी अब इन रियासतों में हुकूमत साजी का अमल शुरू करने जा रही है। नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के आला लीडरों पर मुश्तमिल पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग के बाद बीजेपी सदर ने कहा कि 4 रियासतों में हुकूमत साजी के अमल के लिए ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए सुश्री सुषमा स्वराज और श्री राजीव प्रताप रूडी और वहां के प्रभारी हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री अनंत कुमार जी वो मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में श्री वेंकैया नायडू और हमारे जनरल सेक्रेटरी जेपी नड्डा और साथ में वहां पर धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे। राजस्थान में श्री अरुण जेटली और जनरल सेक्रेटरी श्री अमित शाह और कप्तान सिंह सोलंकी वहां के प्रभारी हैं, वो मौजूद रहेंगे। दिल्ली में श्री नितिन गडकरी और उनके साथ थावर चंद गहलोत जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वह ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद रहेंगे। राजस्थान में बीजेपी की वजीर आला की उम्मीदवार वसुंधरा राजे सिंधिया आज लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग करने वाली हैं। 9 मुंतखब सभी एमएलए इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, जबकि पार्टी की जानिब से अरुण जेटली, भूपेंद्र यादव और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अमित शाह भी इस मीटिंग में शरीक रहेंगे। दिल्ली को छोड़कर बकिया तीनों रियासतों में वज़राए आला का इंतखाब महज रस्मी कार्रवाई है। ये तय है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया वजीर आला होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस ने हालिया असेंबली चुनाव में शिकस्त तस्लीम कर ली है। इंतखाबी नतायज के मंजर-ए-आम पर आने के बाद कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पार्टी की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया और मुहासिबे की जरूरत पर जोर दिया। चारों रियासतों में कांग्रेस का मुजाहरा नाकिस रहा। कांग्रेस आला कमान ने भी पार्टी की शिकस्त को तस्लीम कर लिया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी का कहना है कि इंतखाबी शिकस्त के बाद कांग्रेस अपना मुहासबा करेगी। नताइज के ऐलान के बाद दोनों लीडरान ने मीडिया से खिताब किया। मीडिया से खिताब में सोनिया ने शिकस्त तस्लीम किया और सियासी हरीफों को मुबारकबाद दी। सोनिया ने कहा कि इंतखाबी नताइज से उन्हें मायूसी हुई है, ताहम इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। It goes without saying that we are very, very disappointed at the results, but we accept the verdict of the people in all humility. We congratulate our opponents for winning the elections. नायब सदर राहुल गांधी ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि कांग्रेस अब सियासत में नौजवानों को मौका देगी। इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। द कांग्रेस पार्टी हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ. The Congress party has the ability to stand up to the expectations of the people of this country, and the Congress party is going to do that. We are going to learn from that, and we are going to do a better job than anybody in the country and involve people in ways that you cannot even imagine right now. कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने यह भी वाजह किया कि पार्टी मुनासिब वक्त पर वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस के सीनियर लीडर जनार्दन द्विवेदी का कहना है कि पार्टी और मुख्तलिफ नजरियात के बीच शिकस्त और फतेह होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। लोग आपको स्वीकार नहीं करते, आपकी पराजय होती है, आप फिर से प्रयास करते हैं। जिस तरह से मोदी वर्सेस राहुल का एक यहाँ पे दृश्य बना, वैसे में एनसीपी जैसी आपकी सहयोगी पार्टी है, उसका कहना है कि जो तेवर थे और जो एक अग्रेसिव प्रचार था मोदी और बीजेपी का, उसका जवाब राहुल गांधी ने दिया। मैं समझता हूं बहुत सारे ऐसे निष्कर्षों पर लोग इसलिए पहुंच जाते हैं कि मीडिया सवाल गलत तरीके से उठाता है।
अभी हम जो बात कर रहे थे उसके बाद जिस तरह से आपने प्रश्न पूछा, यह उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। चुनाव कभी व्यक्तियों के बीच में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो मोदी नहीं होते, और 127 साल पुरानी कांग्रेस नहीं होती तो राहुल गांधी का भी नाम सामने नहीं आया। इसलिए मूलतः ये जो द्वंद्व और संघर्ष है, ये पार्टियों के बीच होता है, विचारधाराओं के बीच से होता है, और इसी में हार जीत होती रहती है। जो हारता है वो फिर से प्रयास करता है, इसलिए इसे व्यक्तियों के बीच घेर कर नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आज 67 बरस की हो गई हैं। उनका यौम पैदाइश ऐसे मौके पर आया है जब उनकी पार्टी चारों रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बुरी तरह पसपा होने के सोग में डूबी हुई है। 10 जनपद के करीबी जराये का कहना है कि सोनिया गांधी अपनी सालगिरह का जश्न मनाने नहीं जा रही हैं। इसकी वजह जनूबी अफ्रीकी लीडर नेल्सन मंडेला की मौत बताया गया है। जराये ने इस बात पर खास जोर दिया है कि सोनिया के सालगिरह का जश्न नहीं मनाने का ताल्लुक असेंबली चुनाव में पार्टी की शर्मनाक शिकस्त से हरगिज नहीं है। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अंदर यूं कर राइट किया, ये यहाँ इसे हटाया, बीच से काटा, ये ऐसे, और फिर मैं ऑडियंस। सर, आपका भाग्य फल। आज प्रेम प्रसंग के लिए दिवस बिल्कुल अनुकूल है। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए। 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, एस्ट्रो, क्रिकेट, म्यूजिक, कॉमेडी और बहुत कुछ पाओ। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नोटा यानी इनमें से किसी को नहीं को पहली बार हालिया असेंबली चुनाव में मुतारिफ कराया गया। चुनाव कमीशन ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नोटा बटन शामिल किया। इस बटन का उन लोगों ने इस्तेमाल किया जो चुनाव मैदान में मौजूद किसी भी उम्मीदवार को वोट देना नहीं चाहते थे। आइए देखते हैं नोटा ने नताइज पर क्या असर डाला। इनमें से किसी को वोट नहीं यानी नोटा ने भी दिल्ली असेंबली चुनाव में कमाल दिखाया। चुनाव कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में पहली बार किसी को वोट नहीं का ऑप्शन शामिल किया। इस ऑप्शन वाले बटन का इस्तेमाल उन वोटरों ने किया जो चुनाव मैदान में मौजूद किसी भी उम्मीदवार को अपने कीमती वोट का मुस्तहिक नहीं समझते थे। राय शुमारी के बाद जो आदाद और शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक मजमूई तौर से डाले गए वोटों में से तकरीबन 0.63% वोटरों ने अपने चुनाव हलके में खड़े तमाम उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दिया। यानी 49,000 से ज्यादा वोटरों ने तमाम उम्मीदवारों को मुस्तरद करने के लिए वोट दिया। दिल्ली में 1,19,00,000 वोटरों में से 78,70,000 वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वस्ती दिल्ली के मटिया महल चुनाव हलके में सबसे कम वोटरों ने नोटा का बटन दबाया, तो विकासपुरी असेंबली हलके में सबसे ज्यादा वोटरों ने तमाम उम्मीदवारों को ठुकराते हुए उन्हें वोट देने से इनकार किया। मटिया महल में 296 वोटरों ने और विकासपुरी में 1,426 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। बवाना, नांगलोई, उत्तम नगर और सुल्तानपुरी ऐसे हलके हैं जहां 1,000 से ज्यादा वोटरों ने नोटा का इस्तेमाल किया। नई दिल्ली असेंबली हलके में 460 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। इस हलके में वजीर आला शीला दीक्षित को आप लीडर अरविंद केजरीवाल ने शिकस्त दी। इस बरस सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने वोटरों को तमाम उम्मीदवारों को मुस्तरद करने का हक देते हुए चुनाव कमीशन से मशीनों में नोटा का बटन शामिल करने की हिदायत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। राजस्थान के 3 करोड़ वोटरों में से तकरीबन 1.92% वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। रियासती चुनाव कमीशन के जरिए जारी आदादोशुमार से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि राजस्थान में शहरी इलाकों की निस्बत नोटा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कबायली इलाकों में किया गया, जहां 5.75